Hello everyone, welcome to SSB Crack Exams. I'm Anuradha. In today's session, I'm going to give you a very important tool and we're going to discuss it how you can utilize it. बहुत बच्चों को ये परेशानी में हो जाते हैं उन लोगों का कि मैंने जो पीपीटी के लिए स्टोरी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अपने घर में, क्या ये स्टोरी गुड है? इज दिस अ गुड स्टोरी? इज दिस अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी? क्या ऐसी स्टोरी हम पीपीटी में लिख सकते हैं एसएसबी में? तो आज हम इस टूल के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप खुद को इवैल्यूएट कर पाओगे, अपने पीपीटी स्टोरी को इवैल्यूएट कर पाओगे और आपको एक बहुत ही अच्छा क्लियर पिक्चर आ जाएगा आपके सामने दैट वेदर यू हैव रिटन अ गुड स्टोरी। अगर आपने अच्छा स्टोरी नहीं लिखा है तो कहाँ कैसे इंप्रूव करना है। सो यू हैव टू वॉच दिस सेशन टिल द वेरी एंड. So let us see how you can self-evaluate your own PPT stories for your upcoming SSB interview. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिक्चर्स देख के आप स्टोरी लिखोगे उस पिक्चर को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. अगर आपने पीपीटी में पिक्चर को ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया है, यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ गुड एंड रेलेवेंट स्टोरी अकॉर्डिंग टू इट. सो यू हैव टू एनालाइज द कैरेक्टर्स, व्हाट दे आर वेयरिंग, द सेटिंग और द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, I mean the picture, the details, the characters, everything. And then you have to ensure that you have written an accurately relevant story according to the picture. सेकेंड, आपको अपने स्टोरी के स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करना है. सो हाउ विल यू डू दैट? यू हैव टू सी दैट अ वेल ऑर्गेनाइज स्टोरी typically will consist of an introduction, the body of the story with some key actions and key events, and lastly a conclusion. अगर आपके स्टोरी में ये तीन पार्ट है, then your story is well structured. Also you have to check कि आपके स्टोरी में एक लॉजिकल सीक्वेंस या ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं है. Now, if each part of the story is not connected to one another, you have not written a good story. You have to see that your story is written so that they are logically connected to one another. The next thing that you need to check is relevance. That is, the story that you have written is relevant to the picture or not. मतलब पिक्चर को देख के और स्टोरी को पढ़ के क्या कनेक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पिक्चर कुछ दिखा रहा है और आपने स्टोरी कुछ अलग थीम पे लिखा है. So your story should be closely relating to the image. And if you do so, then your story is a strong, good PPT story. Next, you have to assess whether the story you have written is not copy-pasted from anywhere. You have to, yes, you can get ideas from other stories, but you have to see if your story is containing that original and unique points that can make your story stand out from others. इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी एनालाइज करना है अपने स्टोरी में. So you have to see if the language is clear, if it is concise, if it is expressive. You have to avoid using excessive jargon or overly complex language. Write in simple English and describe the story in a simple language. Next, you have to evaluate character development. Now, if your story involves characters, you have to assess how well they are developed. Do they have distinct personalities? क्या उनके बारे में, उनके actions के बारे में पढ़ के उनके बारे में या उनके qualities के बारे में आप evaluate कर पा रहे हो? क्या उनके motivations, उनके aims, उनके roles आपके narrative में properly described है? ये सारी चीजें आपको टेस्ट करना है. अगर आप कैरेक्टर्स के एक्शंस के थ्रू उनके क्वालिटीज को असेस कर पा रहे हो, देन इट्स अ गुड स्टोरी. Also, you have to seek feedback from peers. अगर आपने PPT story लिखा है, check it out from the peers or from the mentors that you have and get help from them, get a feedback from them. So with their constructive feedback, you can highlight on what aspects of your story need improvement or you have overlooked. So you can improve on them and write a better story next time. इसके साथ साथ आपको अपने स्टोरी के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई करना है. यू कैन पॉइंट आउट किन पॉइंट्स के वजह से आपका स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बन सकता है और किन पॉइंट्स के वजह से आपका स्टोरी में वीकनेस पैदा हो सकती है. जहां पे वीकनेस हो रहा है उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा. इसके साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली. एज यू नो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली राइटिंग स्टोरीज ऑन एनी पिक्चर. You can give yourself challenging pictures using different images from books, from daily lives, from newspapers, from news channels and work on them. इसके साथ साथ आप सक्सेसफुल recommended candidates के लिखे हुए स्टोरीज के साथ खुद के स्टोरीज को कंपेयर कर सकते हो. इससे आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा that how they are writing the story, what kind of qualities of them the assessors were able to assess from their stories and how you are writing them. इसके लिए आप हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे हमने पीपीटी के लिए स्पेसिफिकली सैम्पल स्टोरीज प्रोवाइड की है अलॉन्ग विद सैम्पल स्टोरीज रिटन बाय रिकमेंडेड कैंडिडेट्स देमसेल्व्स. ये काम करने में आपको बहुत ही आसानी होगी. आपको सिर्फ पीपीटी नहीं, पूरे SSB इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ही पता चलेगा बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ स्टडी मटेरियल्स, लेक्चर्स एज वेल एज प्रैक्टिस सेट्स फॉर दैट. ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग रेगुलर लाइव क्लासेस जिसके थ्रू आप अपने पीपीटी स्टोरीज को और भी मजबूत और भी इंप्रेसिव बना पाओगे.
So for tips and tricks like this for your upcoming SSB interview, stay tuned with us and get yourself enrolled to our SSB interview online course. अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के बारे में भी जानना चाहते हो, प्रिपेयर करना चाहते हो, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में ही अवेलेबल है। जब भी आप हमारे कोर्सेज को एनरोल कर रहे हो, वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। सो आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू एंड द नेक्स्ट टाइम दैट यू विल राइट द पीपीटी स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस टिप्स एंड टूल्स in order to self-evaluate your own PPT stories. Let me know in the comments how you have evaluated your stories and where you need to make improvements. Till then, stay tuned with us. Always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।